موجیں کی اور ایک وقت کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب آپ اپنے وسائل کو جو خدا آپ کو دیتا ہے برے کاموں میں ضائع کریں گے، وہ فنش ہوں گے۔ اگر وہی وسائل آپ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خدا ان کو بڑھاتا ہے۔ آمین۔ وہ باپ کی جمع کنجی تھی، اور کیونکہ اس نے خود کمایا نہیں تھا، اس نے خود محنت نہیں کی تھی، اس لیے اس نے اس کو بے دردی کے ساتھ ضائع کر دیا۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ خدا سے برکتیں تو لیتے ہیں لیکن اس کو بے دردی کے ساتھ ضائع بھی کرتے ہیں۔ اس گزرے سال میں خدا سے آپ نے بہت کچھ پایا ہوگا، اور آپ نے بھی اس بیٹے کی طرح لے کر خدا کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے اور اس کو ضائع کیا ہے۔ ایسے ہی آپ جب نیا سال کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے تو آپ بہت ساری کمٹمنٹ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، بہت عہد کرتے ہیں، خداوند اس سال میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور خدا آپ کی اس کمٹمنٹ کو پسند کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا ہے، اور خدا تو پہلے ہی ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ دنیا کی رنگینی نے، دنیا کی عیش و عشرت نے ہمیں گمراہ کیا، جس نے اس بیٹے کو کیا۔ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی بہت سارے خدا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور خدا کو چھوڑ کر جانے سے کبھی آپ بہتر نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ اور تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ، بائبل کیا کہتی ہے، وہ شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے، دھاڑتا ہے، آپ کو پھاڑنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے، وہ آپ کو باپ کی رفاقت سے باہر کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ باپ کی رفاقت کو چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی رفاقت آپ کو دیتا ہے، اور اس کی رفاقت کا ہوا کیا، سب کچھ ختم کر دیا اس نے۔ اینڈ کیا ہوا، وہ بھوکا مرنے لگ گیا۔ باپ کے ساتھ رہنے سے آپ آسودہ ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کبھی آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ ایک جسمانی باپ بھی اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ وہ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باپ کی شفقت، باپ کی رفاقت کتنی اہم ہے۔ جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اس بیٹے نے بھی نافرمانی کی ہے، اور جب وہ بھوکا مرنے لگ گیا، جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، تو سب آپ کے یار ہوتے ہیں، لیکن جب پیسہ نہیں ہوتا تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو سارے ایرے گہرے تڑے یار دوست بن گے۔ جب پیسہ نہیں ہوگا پھر تم کون تھے میں کہوں، پھر ہم بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بیٹے کے ساتھ بھی ہوا، جب پیسہ تھا تو سب دوست اس کے ساتھ تھے، ہر طرح کی انہوں نے عیش پرستی کی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹھوکنے والا نہیں۔ جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ تباہ ہوں گے۔ جب آپ باپ کے ساتھ ہوں گے وہ روکنے ٹوکنے والا ہوگا۔ آمین۔ آج ماں باپ کا روکنا ٹوکنا آپ کو تکلیف دے ہے، اماں تینوں کی پتا، ابا تینوں کی پتا، تسی پہلے آئے ہو کہ وہ پہلے آئے نے، سمجھو اس گل۔ ماں باپ کو ایسے الفاظ کہہ کے انہیں دکھی نہ کریں، خدا اس سے خفا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نہ کوئی روکنے والا رہا، نہ کوئی ٹوکنے والا رہا، نہ کوئی دیکھنے والا رہا، نہ کوئی سمجھانے والا رہا۔ مبارک وہ لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھاتے ہیں، جن کی فکر کرتے ہیں، جس کو اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں سن ٹوکتا رہتا ہے۔ جب وہ نہیں ہوگا تو ایک وقت ہوئے گا آپ کی کنڈیشن بڑی بری ہوگی، آپ کو ابلیس وہاں پھینکے گا جہاں کوئی آپ کا مددگار بھی نہیں رہے گا۔ اس کو بھی وہاں اس نے پھینکا جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے، اور پھر جب وہ بھوکا مرنے لگ گیا تو ایک جگہ پر وہ رویا، اور وہاں پر سور جو ہے
नापाक जानवर जो हैं वो चर रहे थे, तो वो उस सूअर के जो मालिक था वो उससे मिला। देखें आप उसकी कंडीशन क्या है, कहां वो गया, क्या लेवल था, किस लेवल पे वो गिरा। जब आप बाप के साथ होते हैं, माँ बाप की रिफाकत में होते हैं, तो आपकी लेवल बढ़ते हैं, आपकी हर चीज ज्यादा होती है, कसरत से मिलती है। लेकिन जब आप खुदा को छोड़ते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, तो फिर हर चीज आपसे रूठ जाती है, क्योंकि उनकी दुआएं आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उनकी दुआएं आपको सब कुछ मुहैया कर रही होती हैं। लेकिन जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो हर चीज स्टॉप हो जाती है, ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि उनको छोड़ने से मेरा क्या हाल हुआ है। और यही इधर भी हम देखते हैं। और उसने उस मालिक से कहा कि मैं तेरे सूअर जो है वो चराऊंगा, तो तू मुझे इसका क्या, इसके पैसे देगा। तो मालिक ने क्या कहा, जो आपकी उजरत होगी, वो जो ये खाते हैं ना फलियां, वही तूने खानी है। ऐसे ही वो जो नापाक जानवर खराब खाते थे, फलियां खाते थे, उसने कहा यही तेरी तनख्वाह है, यही तेरी उजरत है, यही तू खाएगा और फिर तू इन्हीं के साथ रहेगा। अब वो आलीशान घर नहीं है, वो नौकर भी नहीं है। अब कितनी बुरी हालत होती है जब आप खुदा को छोड़ते हैं, जब बाप को छोड़कर चले जाते हैं। बाप तपती धूप में काम करता है, ठंड में जाता है, तानू बिस्तरियां 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੇ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, क्योंकि उन्हें खुदा दी नाफरमानी की थी। अब वो सुख चैन कहां गए? वहां नौकर थे, चहल पहल थी, ना खान दा फिक्र, ना पकान दा फिक्र, ना लियान दा फिक्र, ना कमान दा फिक्र। जो तुसी खुदा दे नाल रहिंदे हो और तुहाडी सारी फिक्र करता है। आमीन। वो कहंदा अपनी सारियां फिक्रां मेरे ते पा दो। लेकिन जो तुसी उन्हें छड्डदे हो, फिर सारा बोझ तुहाडे उत्ते ही बहेगा, और बोझ थले रह के तुसी कभी एक बेहतर जिंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि आप बीमार होंगे। अब उसने कुछ वक्त तो वो फलियां भी खाई, उन नापाक जानवरों के साथ भी रहा। मेरे अजीजों, खुदा से उसने राब्ता कर लिया। आज जो सीखना है, आप कहीं भी गिर गए हैं, आप कहीं भी फंसे हुए हैं, तो खुदा का राब्ता कभी आपसे मुनक़ता नहीं हो सकता। वो आपके राह को देख रहा होता है, कब ये मुझे कॉल करे, कब मुझे ये बुलाए, तो मैं इसको फिर से बहाल कर सकूं। आमीन, हालेलुया। खुदा बहाल करने वालों में। उसने रात की तारीकी में, तन्हाई में, खामोशी में, मन ही मन में ये बातें करना शुरू कर दी। आप अपने आप से भी बातें करते हैं, और जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो अच्छी बातें क्या करें, अपने आप को बुराई कहते रहते हैं। तो उसने क्या कहा कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर रहते हैं वो भी अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा रहने को उसको मिला है, एसी वाले कमरे 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन मैं इत्थे गंदी सी जगह पे रह रहा। उसने इस बात को फील किया, उसने इस बात का उसके अंदर एहसास आया, ओह माय गॉड। जितने भी जल्दी आपके अंदर ये एहसास आ जाता है, तो वापसी का दरवाजा आपके लिए खुला रहता है। आमीन। तो उसने क्या कहा कि मैं वापस जाऊंगा और मैं अपने बाप से भी माफी मांगूंगा, और खुदा से भी कहूंगा, खुदा मैं तेरा भी गुनहगार हूं, और अपने बाप से कहूंगा, ऐ बाप मैं इस लायक तो नहीं कि तेरा बेटा कहलवाऊं, पर तू मुझे एक नौकर ही बना ले। ऐसे ही अब देखें वापसी के दरवाजे कैसे खुले।
कुछ लोग वापस आना नहीं चाहते, उन्होंने पुलिस को नो 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 उन्होंने तेन घरों कढ़ देने। ये गलत है। तानू नहीं पता माँ बाप जो छड़ के जाते कितने तकलीफ से होंगे, वो तड़ियां रावां तक रहे होंगे, दुआवां कर रहे काश मेरा पुत्र वापस आ जाए, मेरी बेटी वापस आ जाए। मैं भी एक बाप में, मुझे पता है बच्चे कितने भी बुरे हों, माँ बाप फिर भी उनसे प्यार करते हैं। दुनिया नहीं आपसे कर सकती, लेकिन वो फिर आपसे करते हैं। तो उसने जब ये इरादा कर लिया और वो घर से चल पड़ा, आमीन। क्या किया उसने? इरादा किया और बैठा ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग इरादा तो करते लेकिन बैठे ही रहते नहीं। उसने इरादा भी किया। आज आपके पास बहुत सारे इरादे होंगे, बहुत सारे आपके मिशन होंगे, लेकिन आप बैठे हैं। बैठना नहीं, आपको उठना है और खुदा की मदद को लेना है। और वो घर से चल पड़ा और उसने अपने बाप के घर की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। और अंदर ही अंदर वो बड़ा मजबूत हो चुका था। धक्के भी पैण मैं फिर भी बाप दे कोल ही रहना, आमीन। थोड़ा जा गुस्सा भी तो आ जाता ना मां प्यो, लेकिन उन्हें एक कबूल कर लिया, ओ धक्के भी मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन हाँ नहीं जाएगा, आमीन। मां बाप दे धक्के भी तुहाडा फायदा ही करनगे, तुहानू बरकत देणगे, हालेलुया। उन्हां दियां गल्लां भी तुहाडे फायदा कर रही होंदियां। उन्हें इस चीज का इरादा कर लिया, मैं हुण जाना ही जाना, जो मर्जी कर लो, मैं जाना ही जाना। हो सकता है दुश्मन उसको कहते नहीं छाट फिर मैं तेन कितने होर ले जाना, नो नो नो, मैंने अब जाना अपने बाप के पास। और देखें आगे बाप का इंतजार देखें। बाप कोई खुश नहीं था, वो हर रोज दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बेटे की राहें तकता था, काश मेरा बेटा वापस आएगा। उसकी मोहब्बत जो है उसको वापस ले आई, आमीन। मोहब्बत वापसी ले आती है, नफरत वापस नहीं आने देती। आज बहुत सारे लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं, फिर कहते जी घर वापस नहीं आउंदे। तुसी अपना रवैया भी तो बदलो ना। उन्हें तो गलती कर ली बेचारे ने, वो माफी मंगन लिए आ रहा है, लेकिन तुसी कहते ना 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 भज जा वापस नहीं आना। तो ये गलत चीजें। मौका दें, खुदा मौका दे रहा है तो आप भी किसी को मौका दें ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार ले। और बाप ने क्या किया, जब उसने दूर से देखा तो वो खुशी से झूमने लग गया कि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। वो भागा अपने बेटे की तरफ और उसने उसको अपने गले लगा लिया, आमीन। उसको कुट के जिन्हों पंजाबी कहते जफ्फी पा ली। कहता सी खो गया सी, ये मर गया सी, ये जिंदा हो गया, आमीन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा को वापस आते हो तो फिर जिंदा हो जाते हो, आमीन। खुदा तो दूर रहोगे तो मरोगे। बाप ने क्या, एक खो गया सी, ये वापस आ गया। अब बाप की शफकत देखें, उसकी वफादारी देखें, उसकी मोहब्बत देखें। उसने कहा बाप मैंने खुदा और तेरी नजर में बहुत गुनाह किया है, अब मुझे तू अपना नौकरी बना ले। उसने कहा नो नो नो, खुदा तानू नौकर नहीं बनाता, तानू उन्हें अपने बेटे ते बेटियां बनाया, आमीन। तुसी नौकर नहीं हो, पर तेरी सोच नौकरां वाली है। इच निकलो सोच बाहर, तुसी बादशाहां दे बादशाह दे बेटे हो, आमीन। तुसी सिर्फ इन्ना ही रोज कह दो, तेरी शान बढ़ेगी, खुदा खुश होवेगा, आमीन। तो बाप ने क्या किया, जश्न किया, खुशी मनाई। उसने उसको नया लिबास पहनाया, उसकी उंगली में अंगूठी नहीं पहनी, जूतियां नहीं पहनाया, उसको पहनाई। उसके लिए एक उसने भेड़ का बच्चा भी कुर्बान करके तो खुशी मनाई, आमीन। क्या मनाई? तो किन्नू खुशी नहीं हुई? किन्नू खुशी नहीं हुई? आज इंज ही हुंदा जे, कोई घर आ जाए ना, ये वेला मैं तेरी इन्नी खिदमत करता रहा, तू फिर इनू गले ला लिया, माँ बाप फिर भी लाउंदे ही रहणगे,
क्योंकि उन्होंने प्यारे ने। अच मैं बाप हाँ, मैनू भी पता है माँ बाप लिए बच्चे जिन्ने भी बुरे होने फिर भी प्यार करने। आमीन। जब एक बाप, एक जिस्मानी बाप इतनी मोहब्बत करता है तो आसमानी कितना करता है। आमीन। ये तमसील दी गई है। खुदा आपसे प्यार करता है मेरे अजीजों। अगर आपने गुजरा साल इस मुसरफ बेटे की तरह गुजार लिया है, सब कुछ ले लिया आपने, खुदा दे देता है आपको, क्योंकि वो है ही आपका है। आमीन। जो बाप का है वो आपका। देखिए इसकी इस आयत को देखते हैं। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। आमीन। खुदा का जो कुछ है वो आपका ही है। आप लेकर थोड़ा सा भाग ना जाएं कि पता नहीं अगो मिलना कि नहीं, तुसी फिर महरूम हो जाते। वापस आए और कहें, खुदावंद मैं तेरे नाल रहना चाहना। जेड़ा खुदा दे नाल रहिंदा है वो सदा खुश रहिंदा है। आमीन। हालेलुया। जिस तरह से इस बेटे को बाप ने कबूल किया, खुदा आज मुझे और आपको भी कबूल कर रहा है। कभी आप गुनाह करके रोए, कभी आपको पछतावा हुआ, ये पछताया और वापस आया। असी संग दिल हो जाते हैं, सख्त दिल हो जाते हैं, टीठ हो जाने, जिन्होंने टीठ मिट्टी बन जाने। और टीठ लोग जड़े जिद्दी लोग नुकसान उठाते हैं। छोटे हो जो, वो छोटा हो गया, वो छोटा हो गया, उसको कबूल कर लिया गया। छोटा कैसे होगा? उसने अपनी गलती को कबूल किया। ऐ बाप, मैंने खुदा और तेरी नजर में मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। आमीन। हालेलुया। और आज आप भी कहें कि खुदा हमने गुजरा साल तेरे बगैर गुजारा है और हमने तुझे धोखा दिया, तेरे साथ बेवफाई की, पर तू वफादार रहा। तूने वो सब कुछ मुझे दे दिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं ही लेकर दूर चला गया और वहां जाकर मैंने गलत कामों में खत्म कर दिया। और ऐसा ही हुआ। ये बदन खुदा का है, इस साल उसको दे दीजिएगा। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। डरे मत, खौफ कर दो अपने दिलों चों। खुदा पहले ही तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। माफ करने वाला खुदा है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आए आज इस बात का इकरार करें, जिस तरह से मुशरफ बेटे ने, इस खोए हुए बेटे ने इकरार कर लिया, आज आप भी कर लें। मैंने तो रात तक कर लिया। सीधी गल जी, हर किसी को अपना पता होना चाहिए। किसी का पता ना रखो, अपना रखो। मैंने ये सीखा, लोग दूजा का पता कर छड़ दो, ओदा मसला है। तुसी अपने मसले देखो, तुसी की करते पे। आमीन। मनु खुदा ने मेरा हिसाब लेना है कि तू की कीता है पुत्र। आजा सामने आजा। मैं अपनी वीकनेस को मैंने चेक किया, अपनी मिस्टेक को देखा है, अपने जो गुनाहों को देखा है कि जो मेरे अंदर कमियां थी, मैंने उसको रात खुदा के आगे रखा है और मैंने इस साल उसके साथ फिर से एक नया अहद किया है। आमीन। आए आज आप भी एक नया अहद करके जाएं। कोई इतवार मिस ना करें, क्योंकि बाकी 6 दिन तो तुसी केड़ा उन्हें मिलना होंदा है। इन दुनिया दे काम कर रहे हो, लेकिन इतवार को आप मिस ना करें, क्योंकि वो एक दिन आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अगले 6 दिन के लिए खुदा आपको ब्लेस करे, अगले 6 दिन के लिए आपको वो पावरफुल करे। क्योंकि जब आप दुनिया में जाते हैं तो आप गुनाह आलूदा हो जाते हैं, लेकिन खुदा फिर से आपको पाक करता है, फिर से आपको धोता है, फिर से आपको वॉश करता है, फिर से आपको माफ करता है, फिर आपको तैयार करता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी मोहब्बत को, तो फिर आपको भी अपने खुदा के साथ चलने का अहद करना है। खुदावंद कुछ भी होवे, मैं तेरे नाल रवांगा, मैं तेरे नाल चलांगा। मैं चीज़ां दा भुखा नहीं, मैं तेरी रफाकत दा भुखा वा। आमीन। चीज़ां तो मुक जांदियां, वो बच्चे दी भी मुक गई ना। असीं कोई चीज़ां लैके भज गए तो मुक गई ना, रही तो वधियां रहनियां सी। आमीन।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਲੀਸ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਝੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਬਰਕਤ دے. God bless you.